Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss the chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh of class 11th. So first about the story briefly. The Portrait of a Lady is a real story of the writer's grandmother. Portrait of a Lady रियल स्टोरी है राइटर की दादी की, मीन्स खुशवंत सिंह की दादी की रियल स्टोरी है. The writer tells us the story of his childhood that he had spent with his grandmother. वह अपने बचपन की कहानी बताता है जो उसने अपनी दादी के साथ बिताया था. Now, chapter begins. The portrait of a lady. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वह 20 साल से जिसे मैं जानता था बूढ़ी और झुर्रीदार थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोगों ने कहा कि वह कभी जवान और सुंदर भी थी और उनका एक पति भी था, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था. She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से छोटी और मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका चेहरा झुर्रियों का एक क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ा तिरछा जो हर जगह से हर जगह दौड़ रहा था, मीन्स सारे फेस पे झुर्रियाँ थी. My grandmother and I were good friends. मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता मुझे उसके साथ दादी के साथ छोड़ गए जब वे शहर में रहने चले गए और हम लगातार साथ रहे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वह मुझे सुबह उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing-sang while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. वह अपनी सुबह की प्रार्थना मोनोटोनस मीन्स नीरस आवाज़ में गाती थी. जब उसने स्नान बात करती थी तब, जब नहाती थी तब गाती थी और मुझे इस उम्मीद में कपड़े पहनाती थी कि मैं इसे सुनूंगा और इसे दिल से जानूंगा. मैंने सुना क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन इसे सीखने की कभी परवाह नहीं की. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it we went to school. ब्रेकफास्ट के बाद हम एक मोटी स्टेल बासी रोटी, उस पर थोड़ा सा मक्खन और शुगर यानी चीनी के साथ स्कूल जाते. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. वह अपने गांव के कुत्तों के लिए भी कई बासी रोटी रख लेती थी. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता आराम से सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने हमें बुलवा लिया. That was a turning point in our friendship. वह हमारी दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मोड़ था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि हम एक ही रूम शेयर कर रहे थे, लेकिन मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए हमने एक दूसरे को कम देखा. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ टाइम तक वह मुझे जगाती रही और तैयार करती रही स्कूल के लिए. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस आता तो वह मुझसे पूछती कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया है. I would tell her English word and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. मैं उन्हें बताता इंग्लिश वर्ड्स, साइंस, सीखने की छोटी छोटी बातें, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का रूल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दुनिया का गोल होना, एक्सेट्रा. दिस मेड हर अनहैप्पी. इससे वह दुखी होती. She felt upset that there was no teaching about God and scriptures at the city school. वह परेशान थी कि शहर के स्कूल में भगवान और स्क्रिप्चर्स शास्त्रों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी.
When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे अपना एक सेपरेट रूम दिया गया. The common link of friendship was snapped. हमारी दोस्ती की कॉमन लिंक टूट गई थी. My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी दादी ने रेजिग्नेशन के साथ अपना एकांत एक्सेप्ट कर लिया था. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सनराइज से सनसेट में सुबह से शाम तक वह अपने घूमने वाले व्हील के पास बैठकर पूजा पाठ करती. Only in afternoon she feed the sparrows. और दोपहर में स्पैरोज गौरैया को खाना खिलाती या दाना डालती. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी परेशान होंगी. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा और उनकी उम्र का कुछ पता नहीं है. But she was not even sentimental. लेकिन वह दादी भावुक भी नहीं थी. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई और ना कोई बात की और ना ही कोई इमोशन यानी भावुकता दिखाई. But when he came back home after a duration of 5 years, his grandmother was there to welcome him back and he saw her celebrate his return. लेकिन जब वह 5 साल के बाद घर वापस लौटा तो उसकी दादी उसका वेलकम करने के लिए वहाँ थी और ऑथर ने उन्हें दादी को अपनी वापसी का जश्न मनाते हुए देखा. उनकी दादी ने पड़ोस की औरतों को बुलाया और गाने गाए. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. नेक्स्ट मॉर्निंग वह बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. यह हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि यह चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन दादी ने अलग तरह से सोचा. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. और उन्होंने कहा कि अब उनका अंत निकट है. वी प्रोटेस्टेड. हमने प्रोटेस्टेड विरोध किया. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स. लेकिन उसने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. और वह शांति से बेड पर लेट गई और प्रार्थना करने लगी. Even before we could suspect, a peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन फैल गया और हमें पता चल गया कि वह मर चुकी है. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उन्हें बिस्तर से उठा लिया और जैसा कि कस्टमरी प्रथा है, मीन्स मरने के बाद इंसान को ज़मीन पर लिटाया जाता है, ऐसी प्रथा है या मान्यता है, उसको ज़मीन पर लिटा दिया और उसे लाल श्राउड यानी कफन से ढक दिया. To grieve her death, thousands of sparrows flew in and sat dispersed around her body without making any noise. उसकी डेथ का ग्रीव यानी शोक या दुख मनाने के लिए हज़ारों स्पैरोज आई और बिना शोर के उसकी डेड बॉडी के चारों ओर डिस्पर्स्ड फैल गईं या बैठ गईं. नाउ कंक्लूजन. द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर हैड अ ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन देम एंड लव्ड ईच अदर अ लॉट. अब कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ऑथर और उसकी दादी के बीच एक सुंदर बंधन था और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.